Good morning, one and all. I hope everyone is doing well and fine. And today we'll be looking at a next topic in straight lines. And our topic for today is slope. How to measure the slope. Slope we have already discussed in class 10th actually, and we did quite a number of questions on it. So today we'll be looking at slope again and looking at some of the questions that are related to it. It's not a very big exercise, a very small exercise like the previous exercise that you did. So yeah, today we'll be learning about this slope of a straight line. But before going to the slope of a straight line, let's talk about some of the main topics or the basic topics that come under slope of a straight line. The very first topic that comes is inclination of a straight line. इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन का मतलब होता है द एंगल और द थीटा दैट इज मेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन. ओके, सो द थीटा बन रखा है एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा बन रहा है दैट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन. कितना इंक्लाइन हो रखा है. सो मे बी दिस इज माई लाइन एंड दिस इज लाइक दिस. So the angle that is being made between the given line and the x-axis is called inclination. So basically inclination को हम थीटा बोलते हैं, कितना इंक्लाइन हो रखा है. तो अगर मुझे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द इंक्लिनेशन, सो इट मीन्स इट दे आर टेलिंग मी टू फाइंड थीटा. Okay, I'll do some questions on them, but just to open up your memories that we already did in class 10, inclination को बोलते हैं theta. Okay, कितना lean हो रखा है, incline हो रखा है कितना. So for example, let's say sometimes what is the inclination value of y-axis? That is 90 degree. y-axis कितना incline हो रखा है? 90 degree. ओके, सो इंक्लिनेशन का मतलब होता है थीटा की वैल्यू ढूंढना. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बेसिक. नेक्स्ट थिंग इज हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन इज एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फॉर एग्जांपल this line is parallel to x axis and the name of the line can be x equals or y equals to minus 2. Y equals to minus 2. The name of the line is, or the equation of the line is y equals to minus 2. This line is parallel to x axis. Okay, so this is called a horizontal line. Any line that is parallel to x axis, and x axis itself is also called a horizontal line. Okay, vertical line that is parallel to y axis, or the y axis is also called a, okay, vertical line. Oblique is any line that is not horizontal nor vertical. Okay, if it's not vertical and not horizontal, then we call it a oblique. So in this topic or the slope topic, we'll actually study about oblique. Okay, oblique lines that are not horizontal, not vertical, so they form an angle, and if it's forming an angle, it's making a slope. Okay, now let's talk about slope. What is slope? Okay, slope hota kya hai? Slope is basically, actually you know what is slope, है ना? This is called slope. कितना slope है ना? And in mathematics, basically slope is given by tan theta. कैसे मेजर करते हैं? अगर हम मैथमेटिक या फिर टिग्नोमेट्री के फॉर्म में देखें, हम जो स्लोप है कैसे मेजर करते हैं? tan थीटा. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? m से, स्मॉल लेटर m. m इज कॉल्ड स्लोप और tan थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप. सो अगर मुझे स्लोप ढूंढना है तो मैं tan थीटा की वैल्यू डाल दूंगा. दैट इज बेसिकली, इफ यू गाइस सी ओवर हियर in the definition also, so it's given if theta that is not equals to 90 is the inclination. अगर theta inclination है of a straight line, then tan theta is called the slope. What is the slope? Tan theta is called the slope. Okay, so you just have to keep in mind that tan theta is the slope or m is the slope. Okay, according to mathematics. According to mathematics, tan theta is slope, but let's see according to coordinate geometry what is slope or how to find slope when two points are given. Okay, so I'll be making a graph. Okay, so let's say let us imagine that this is, sorry, okay, let's imagine that this is the line. ये लाइन के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्या बना रहा है? थीटा. इंक्लिनेशन इज थीटा. ओके, सो अगर मैं यहाँ भी एक लाइन बनाता हूँ ऐसे करके, और ये भी बनाता हूँ ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके बनाता हूँ मैं,
तो जो अगर इसके पैरेलल ये लाइन बनाता हूँ मैं, तो आपको पता है जो थीटा ये है वही थीटा ये सेम भी होगा, ये सेम थीटा होगा, चाहे मैं कैसे भी बना दूँ। अगर इससे वाई एक्सेस से एक्स एक्सेस से पैरेलल बनाऊँ कोई सी भी लाइन, तो ये थीटा ये सेम थीटा होगा, इंक्लिनेशन सेम होता है, ठीक है। सो अगर ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ऐसे जाता है और ऐसे जाता है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो सेम है। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट का नाम है ये लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q, ओके। सो द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज x1, y1 और इसका है x2, y2, ओके। नाउ यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ से लेके ये ओरिजिन से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, x1। समझ आया? क्योंकि तभी मैंने x1 और y1 लिखा है, क्योंकि अगर मैं 3,5 लिखता मतलब यहाँ से लेके यहाँ 3 है, पर मैंने x1 लिखा हो तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ओरिजिन से लेके O से लेके यहाँ तक कितना है, x1, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूँ मैं O, इसका नाम N और इसका नाम M, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा N M P Q R, इसका नाम R हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी। अब मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब मुझे किसकी वैल्यू ढूंढनी है, QR। तो QR सेम होगा NM की तरह, पर मुझे पता है, और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पता है कितनी है, x2। आप सबको पता होगा क्योंकि मैंने ये पॉइंट का नाम क्या रखा है, x2, y2, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो, x2, ठीक है। तो अगर मुझे NM ढूंढना है, NM इक्वल्स टू कितना होगा, QR, आप सबको पता है, इक्वल्स टू मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1, कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1, सबको पता है। ये पूरे x में से इतना x माइनस कर दो, ये बचेगा, लॉजिक है, ठीक है। अब मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, PR। PR की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आप खुद ही सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका y2, ये पूरा y2 है, तभी इसका नाम y2 रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक y2 है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, y1। तो अगर मुझे बस इतना इतना ढूंढना है, लेट्स से ये पूरा 10 होता और ये 6 होता, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती। तो मैं क्या करूँगा, y2 माइनस y1। तो PR कितना है मेरा, मैं PR से लेके यहाँ एरो करके लिख रहा हूँ y2 माइनस y1, और QR कितना है मेरा, x2 माइनस x1, ठीक है। अब इधर आ जाओ, हम टेन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसमें मेरा परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ, राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा परपेंडिकुलर क्या है, PR अपॉन QR, सबको पता है, ठीक है, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू PR की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, ठीक है, और QR की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1। सो बेसिकली जब मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट्स गिवन है, दो कोई से भी पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, तो मैं उसका स्लोप कैसे ढूंढूंगा, टेन थीटा करके, जो भी मेरा आंसर आएगा ऐसे में आएगा, ओके। अभी हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे, जब भी मुझे दो पॉइंट्स गिवन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मुझे स्लोप ढूंढने बोला है, तो मैं ये वैल्यू डालूंगा y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, अपॉन में रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग स्लोप, this is the formula of finding slope in coordinate geometry in straight line, y2 minus y1, x2 minus x1, okay. We'll also do some questions on this, okay, don't worry, we'll do some questions on this, okay। let's have a look over here. So example number 1 क्या कहता है, find the slope of a line passing through these 2 points। I have to find the slope। तो मैंने आपको बताया था स्लोप ढूंढने का मेथड क्या है, जब आपके पास दो गिवन पॉइंट्स हैं तो क्या है स्लोप ढूंढने का मेथड, स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब भी दो पॉइंट्स गिवन है आपको यही फॉर्मूला लगाना है, आपको टेन थीटा भी नहीं लिखना, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको टेन थीटा कब लिखना है, आपको स्लोप ढूंढना है अभी डायरेक्ट, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, y2 क्या है 4 माइनस -2, x2 क्या है आपके पास, x2 है -1 और -3,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6/-4, और आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप जब कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 -3/2. सो दिस इज द स्लोप. My slope is -3/2. So that's how you do this type of questions. Okay, we'll do one more question. Okay, let's say example number 4. Example number 4 में कहता क्या है, find the inclination of a line. Inclination ढूंढना है मुझे. अब मैंने आपको बताया था inclination होता क्या है, थीटा होता है, मतलब हमें थीटा ढूंढना है. तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं फॉर्मूला डालूंगा tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, मैंने ये फॉर्मूला डाल दिया. अब tan थीटा इक्वल्स टू व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, तो y2 क्या होगा, आपको आसानी से दिख रहा होगा 3, ठीक है. y1 कितना होगा -2 ओवर x2 -4 -1. तो tan थीटा इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6 ओवर -6, सॉरी 5 ओवर -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -1. कितनी वैल्यू आएगी, -1, ठीक है. तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप -1, ठीक है. अब tan थीटा इक्वल्स टू -1, राइट, आपकी वैल्यू आ गई. पर आपको इंक्लिनेशन ढूंढना है, मतलब थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, आपको tan थीटा की वैल्यू ढूंढनी है, आपको थीटा की वैल्यू ढूंढनी है बस, सिंपली. सो आप क्या करोगे, आप लिखोगे tan थीटा इक्वल्स टू -1 कब होती है, -10:45 पे होती है. मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, माइनस तो ऐसे लिख दिया मैंने, पर 1 की जगह क्या लिख दिया 10:45, क्योंकि tan थीटा 45 होता है, ठीक है. 45 पे कितना होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 की जगह 10:45 लिख दिया. अगर आप देखो यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, माइनस है, माइनस जब भी आता है ना ऐसे माइनस करके, तो मैं क्या करूँगा 10/180 -45 कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ. सो tan थीटा इक्वल्स टू 10/135, मतलब 10 और 10 कट गया, तो थीटा कितना आ गया आपके पास 135, ठीक है. जब भी माइनस है आप ऐसे करना हमेशा, 180 से माइनस कर देना, ठीक है. तो मतलब आपकी इंक्लिनेशन आ गया, मतलब जो आपका जो लाइन है, जो इंक्लाइन हो रखा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, वो 135 एंगल बना रहा है. ओके, दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड इंक्लिनेशन ढूंढना जब होता है तब आप ये वाला फॉर्मूला पुट करते हो, अदरवाइज जस्ट पुट अ स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1. और अगर आपको इंक्लिनेशन ढूंढना है तब आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो. ओके, आई होप यू guys understood how to do this type of questions, and you have to do this exercise so that you can develop more understanding and wisdom, knowledge on this type of questions. Okay, so thank you so much for watching this video. Have a good day ahead.